Good morning, students. You are welcome in the fourth lecture of microbiology. Today we discuss the contribution of scientists in the field of microbiology, part 2. Earlier we have seen the contribution of Antony van Leeuwenhoek and Louis Pasteur. Scientist number 3, Robert Koch. He survived between 1843 to 1910 and he is known as the founder of modern bacteriology. Robert Koch, whose full name is Robert Heinrich Hermann Koch, who born in December 11, 1843 and died in May 27, 1910. Robert Koch was a German physician and one of the founders of bacteriology. This scientist has discovered anthrax disease cycle and bacteria responsible for tuberculosis, formerly known as a TB, a lung infection, and cholera. For his discoveries in regard to TB, tuberculosis, the German doctor Robert Koch is considered as a father of modern bacteriology. तो ये साइंटिस्ट ने 3 डिसीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई किए जब माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हुई थी. एंथ्रैक्स बैसिलस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस and cholera agent Vibrio cholerae. His discoveries made a significant contribution to the development of magic bullet, chemicals developed to attack specific bacteria, and Koch was awarded a Nobel Prize in 1905. So what is magic bullets? Magic bullets are the word given to the chemical substance which kill the microorganisms. Magic bullet, the word is given to Salvarsan compound which is developed by Paul Ehrlich in order to treat microbial diseases. तो पॉल एरलिच ने केमिकल्स बनाए थे. मैजिक बुलेट 606 करके एक साल्वारसन कंपाउंड था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता था. एंड पॉल एरलिच नॉन एज द फादर ऑफ केमोथेरापी, जो आगे हम पढ़ेंगे. तो मैजिक बुलेट किल करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो भी रॉबर्ट कोच की स्टडी से प्रेरित हुआ था. Robert Koch is known for best discovery, that is a germ theory of disease. Germ theory of disease का मतलब क्या है? germ यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड थियरी ऑफ डिसीज यानी कोई भी डिसीज होता है, इन्फेक्शियस डिसीज ह्यूमन या एनिमल्स में, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम कर रहे हैं. इससे पहले तो ये नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज करते हैं, बट साइंटिफिकली फर्स्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप रॉबर्ट कोच showed that the microorganism cause infection in proper fashion. So this is known as germ theory of disease, and the major contribution in germ theory of disease is of Robert Koch, and second one is the Louis Pasteur. So Robert Koch developed the new experimental method to test whether a particular microorganism is the cause of disease. रॉबर्ट कोच ने पहले बताया कि हर डिसीज एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता. एक एक डिसीज के लिए एक एक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिसके रिस्पॉन्सिबल है. Building on Pasteur's work on germ theory, Koch used the experiment to prove that bacterium Bacillus anthracis
was the cause of anthrax and bacteria could be observed in the tissue of anthrax victim. तो ये साइंटिस्ट को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो उसने एंथ्रेक्स बेसिलस, फॉर्मली जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स बेसिलस, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। सो बेसिलस एंथ्रेसिस को उसने प्यूरिफाई किया और जिस ह्यूमन या एनिमल को एंथ्रेक्स था तो उसमें से इसने हर बार एक ही ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया, वो था बेसिलस एंथ्रेसिस। तो उसने प्रूव किया कि जो ऑर्गेनिज्म डिसीज करता है, अगर वही डिसीज किसी और को भी है तो उसमें भी वही ऑर्गेनिज्म मिलेगा। यानी एंथ्रेक्स के डिसीज में एंथ्रेक्स बेसिलस मिलेगा, टीबी के डिसीज में टीबी का ऑर्गेनिजम्स मिलेगा, कॉलेरा के डिसीज में कॉलेरा का ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं जर्म थियरी ऑफ डिसीज। ही एक्सट्रैक्टेड हिज बैक्टीरियम फ्रॉम sheep which had died of anthrax and grew it injected in a mouse with it. The mouse developed the disease as well. तो उसने एक शीप लिया जिसको एंथ्रेक्स हुआ था और वो मर गया, तो शीप के ब्लड में से उसने ब्लड निकाला जिसमें एंथ्रेक्स बेसिलस की प्रेजेंस थी। वैसा कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड ब्लड उसने माउस में दिया, उंदर में दिया। तो जो माउस था उसको भी क्या हुआ? एंथ्रेक्स, और वो भी मर गया। कोच रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट ओवर 20 जनरेशन ऑफ माइस बिफोर ही अनाउंस्ड इन 1876 ही प्रूव्ड दिस बैक्टीरियम कॉज एंथ्रेक्स। तो उसने 20 जनरेशन, एक के बाद एक 20 जनरेशन तक वो माइस को इन्फेक्शन करवाता रहा और उसने प्रूव किया कि ये एंथ्रेक्स बेसिलस से होता है। तो उसके ऊपर से उसने 4 रूल्स बनाए जिसको हम बोलेंगे कोच पोस्टुलेट। तो कोच ने 4 चीजें बताई स्टेप बाय स्टेप। उसने पहले क्या किया था? यहां पे फर्स्ट माउस है, यहां ऊपर देख सकते हो डिसीज्ड एनिमल। तो जो माउस था उसको इंजेक्शन दिया गया शिप में से, तो शिप के एंथ्रेक्स के बैसिलस उसमें ग्रो किए और माउस हैज डाइड। तो डाइड माउस जो है उसके ब्लड में से उसने कल्टिवेशन किया अगर प्लेट पे, whether it contains the bacillus or not. So he observed that there are the presence of anthrax bacillus. उसको वो प्लेट में ब्लड कल्चर के साथ माउस के ब्लड में से एंथ्रेक्स बेसिलस मिले। वही चीज़ जब उसने एक हेल्दी माउस में की जिसको कोई डिसीज नहीं था, तो उसके ब्लड में से लिए हुए सैंपल में वो बैक्टीरिया नहीं दिखे, जबकि यहाँ पे ग्रीन कलर के आपको बैक्टीरिया दिख रहे। तो पहला उसने पोस्टुलेट में क्या कहा, उसका जो फर्स्ट कंक्लूजन था, बराबर, उसने क्या बताया कि द सस्पेक्टेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म should be present in all case of the disease and absent from the healthy animals. उसने बताया कि जिसमें डिसीज होता है उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम बोलेंगे पैथोजन, और जो हेल्दी है उसमें पैथोजन नहीं होता। तो ये चीज उसने सबसे पहले बताई। फिर जो ब्लड था उसका कल्टीवेशन उसने किया लेबोरेटरी में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है। सो ही ग्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ लेबोरेटरी कंडीशन ऑन अ अगार प्लेट। अगार प्लेट में उसको माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए मिले। तो उसने दूसरा क्या बताया कि द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड बी ग्रोन इन प्योर कल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्योर कल्चर में ग्रो हो सकते हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो।
एक में कल्टीवेशन दिखा रहा है, दूसरे में नहीं दिखा रहा। तो ये उसका दूसरा काम था। तीसरा, जब वही ऑर्गेनिज्म एक हेल्दी माउस में इंजेक्ट करेंगे तो तीसरे में भी इन्फेक्शन फैला जाएगा। तो उसने तीसरा क्या लिखा, द सेल्स फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिसीज इन हेल्दी एनिमल। जो प्लेट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसने आइसोलेट किए थे, उसका इंजेक्शन जब एक हेल्दी एनिमल में एंटर किया गया तो हेल्दी एनिमल को वो एंथ्रेक्स हुआ और वो मर गया। तो तीसरी बात वही बताई उसने, द सेल्स फ्रॉम प्योर कल्चर, सेल्स यानी पैथोजन, जब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके हम सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म कॉज द डिसीज इन हेल्दी एनिमल, तो हेल्दी एनिमल में जब उसको इंजेक्ट किया गया तो उसके ब्लड में भी वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए और उसको इन्फेक्शन हुआ। और चौथी चीज उसने रिपीट किया कि फिर से वही हेल्दी एनिमल्स में से उसने ब्लड एनालिसिस किया और ब्लड एनालिसिस के बाद उसमें से कल्टीवेशन किया। सो ही फाउंड द सेम ऑर्गेनिज्म, उसको वही ऑर्गेनिज्म ये हेल्दी एनिमल में से मिले जो पहले हेल्दी था और उसके बाद उसको डिसीज हुआ और मर गया। यानी ही प्रूव्ड दैट द सेम ऑर्गेनिज्म कॉज द डिसीज। तो उसको पता चल गया कि डिसीज जो होते वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते। सो कोच डिटरमिन द गाइडलाइन टू प्रूव द डिसीज इज कॉज्ड बाय ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। तो कोच ने बता दिया कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है डिसीज हो कर सकता है, जो पैथोजन वो एक प्रॉपर ऑर्डर में करेगा। दिस फॉर बेसिक क्राइटेरिया कोच पोस्टुलेट, तो आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, राइट डाउन द कोच पोस्टुलेट। तो 4 पोस्टुलेट्स जो मैंने आपको बताए, कैसे कौन से 4 है फिर से एक बार देख ले। द सस्पेक्टेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शुड प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ द डिसीज एंड एब्सेंट फ्रॉम द हेल्दी एनिमल। तो जिनको एक डिसीज हुआ है वो सब में वो ऑर्गेनिज्म होगा, जिनको डिसीज नहीं हुआ उसमें वो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, पहली बात। दूसरी, द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड ग्रोन इन प्योर कल्चर, तो जिनको डिसीज हुआ है उनकी बॉडी में से वो ऑर्गेनिज्म हम कल्टीवेट कर सकेंगे। तीसरा, द सेल्स फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिसीज इन हेल्दी एनिमल। तीसरा था कि जो पैथोजन थे उनका प्योर कल्चर हम अगर किसी में हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट करेंगे तो हेल्दी एनिमल में भी डिसीज होगा। और चौथा, द ऑर्गेनिज्म शुड बी रीआइसोलेट और रिकवर्ड फ्रॉम द सेम एज द ओरिजिन। और जो इन हेल्दी एनिमल में इन्फेक्शन किया उनको डिसीज हुआ और उनमें से वो ऑर्गेनिज्म हम आइसोलेट करेंगे तो वो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म बिल्कुल वही होगा जो पहले हमने इंजेक्ट किया था। मतलब जो हमने इंजेक्ट किया वही ऑर्गेनिज्म ने डिसीज किया। तो ये सारी चीज़ें उस जमाने में नई लग रही थी, आज हमको पता है तो हमको कोई इम्प्रेशन उस पर नहीं रही। So this is the concept of germ theory of disease. So in 1878, Koch summarized his experiment on etiology. Etiology means is the science of causing disease. कोई भी डिसीज कैसे हो रहा है उसकी जो स्टडी है उसको हम बोलेंगे एटियोलॉजी। सो एटियोलॉजी ऑफ वुंड इन्फेक्शन। By inoculating animal with the material from various sources, he produced 6 types of infection and each caused by a specific microorganism. तो वो डिसीज पे काम कर रहा था कि कौन से डिसीज कौन से तरीके से क्या कर सकता है। तो उसने 6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 6 अलग अलग इन्फेक्शन को स्टडी किया। Then he transferred this infection by inoculation through several kinds of animal and reproducing the ओरिजिनल 6 टाइप्स। तो जो अभी हमने डिस्कशन किया कोच पोस्टुलेट, वो उसने 6 अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किया था। इन दैट स्टडी ही ऑब्जर्व डिफरेंट पैथोजेनिसिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ होस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट
द एनिमल बॉडी इन एक्सेलेंट एपर्टस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो उसने बताया कि हर एक में अलग अलग तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं और ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में हम बहुत अच्छी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट कर सकते। तो ये था उसका माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी। दीज आर द 4 कॉस्ट पोस्टुलेट्स। उसके सिवा माइक्रोबायोलॉजी में उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया? तो कोच डिस्कवर्ड द स्टेफाइलोकोकस, मेजर डिसीज कॉजिंग ऑफ वुड इन्फेक्शन। तो आपको कभी स्किन पे वाइट कलर का एक एब्सेस होगा जिसमें से पस निकलेगा, तो उसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे स्टेफाइलोकोकस। नीचे आप फिगर में देख सकते हो स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो मीन्स बंच एंड कोकस मीन्स राउंड से बैक्टीरिया। तो आपको ऐसे स्टेफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसने सबसे पहले वुंड इन्फेक्शंस में से मिले। He isolated and identified the bacteria that cause cholera. The name of organism is Vibrio cholerae. तो उसने विब्रियो कोलेरा का आइडेंटिफिकेशन किया और बताया कि कोलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। कोच वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल प्रोसीजर एंड मेथड फॉर डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। उसने डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन जैसी माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया उसने। दिस वॉज द इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर लेबोरेटरी वर्क बट फॉर पब्लिक हेल्थ मेजर्स एज वेल। तो डिसइंफेक्शन सिर्फ लेबोरेटरी में हम नहीं करते, डिसइंफेक्शन आज भी हम अपने घरों में बाथरूम क्लीनिंग में या जब भी घर में पोछा लगाते तब भी हम यूज़ करते। हम हाथ भी सैनिटाइजर से धो रहे। सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द वर्क ऑफ रॉबर्ट कोच कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हर जगह से हमको मारना है, निकालना है। तो ये कंसेप्ट उस टाइम पे रॉबर्ट कोच ने दिया। कोच वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्व दैट हेल्दी ह्यूमन बीइंग कुड कैरी द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। हेल्दी ह्यूमन में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। कैसे? हेल्दी ह्यूमन में कैसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? तो हमको पता है, आज हम कोरोना में एक बात सुन रहे, एसिम्प्टोटिक कैरियर। एसिम्प्टोटिक एटले दैट मीन्स उसको डिसीज दिख रहा है, नहीं है, उसके अंदर वायरस है, तो उसको हम बोलेंगे हेल्दी कैरियर। तो आगे जाके भी उसको हम देखेंगे हेल्दी कैरियर। कोच कंटिन्यू टू इम्प्रूव हिज मेथड एंड टेक्निक्स। उसने आइसोलेशन टेक्निक्स दिए। कैसे? सॉलिडिफाइंग लिक्विड विद द ब्रॉथ विथ जिलेटिन एंड अगर। उसने कल्टीवेशन टेक्निक्स दिए जो आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। सो ही डेवलप द मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन सॉलिडिफाइड मीडिया। तो अगार कैसा है? अगार एक मोमबत्ती जैसा सब्सटेंस है जिसको गर्म करने पर लिक्विड हो जाएगा और ठंडा होने पर वो एक जेल फॉर्म हो जाएगा। जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको सॉलिडिफाइंग सब्सटेंस बोलेंगे हम। कोच डेवलप द टेक्निक फॉर आइसोलेशन बैक्टीरिया ऑन कल्चर प्लेट। द प्लेट टेक्निक not only created foundation of bacteriological research become indispensable for the study of bacterial genetics। तो आज जो भी लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काम हो रहा है वो बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं जो रॉबर्ट कोच ने यूज़ की थी। सो दिस टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड इन 1900। जो 1900 के साल में उसने बनाई वो आज 100 साल के बाद वही सेम फॉर्मेट में हम यूज़ कर रहे हैं। कोच का एक असिस्टेंट था जूलियस रिचर्ड पैट्री, हु डिस्कवर्ड द पैट्री प्लेट। आप फिगर में एक प्लेट्स देख रहे हो, कांच की 2 डिब्बी है, तो वो है पैट्री प्लेट। पैट्री प्लेट इज अ इम्पॉर्टेंट टूल इन माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको क्वेश्चन आएगा हु इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड द पैट्री प्लेट्स। सो J.R. पैट्री, पैट्री के नाम से हम उसको बोलेंगे पैट्री प्लेट्स। He developed the Petri plate which made the observation of bacteria। नीचे आप दूसरी फिगर में देख रहे हो कि पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया कैसे
ग्रो होते हैं, तो आपको बैक्टीरिया ग्रो हुए मिलेंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रो हो रहे पेट्री प्लेट में। So this one is the Petri plate. He showed an inconvenience way that microorganisms cause disease in human. उसने सही तरीके से बताया कि कैसे ह्यूमन टू ह्यूमन और एनिमल टू ह्यूमन डिसीज ट्रांसमिट हो रहे हैं। उसने एंथ्रैक्स का भी एग्जांपल्स दिया। अभी जो आप फिगर देख रहे हो वो एंथ्रैक्स बैसिलस का उसका स्टडी है। He established the cause postulate which provide the essential experimental basis for any study of infectious disease. तो वो हमको पता है, हमने 4 postulates भी देख लिए। Koch and his team also developed for way of staining bacteria to improve bacteria's visibility under the microscope. तो बैक्टीरिया उतने छोटे होते हैं कि उसको हम देख नहीं पाते, तो उसको हमको कलर करना पड़ेगा, अभिरंजित यानी स्टेनिंग करना पड़ेगा। तो वो स्टेनिंग टेक्नोलॉजी भी दी। आपके सबसे पहले प्रैक्टिकल्स जो होंगे वो स्टेनिंग्स के होंगे। सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल कॉज ऑफ टीबी एंड कॉलेरा। तो उसने सबसे पहले टीबी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन किया और कॉलेरा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन किया। अडॉप्टिंग कोच मेथड, अदर रिसर्चर वर एबल टू आइडेंटिफाई ऑफ द बैक्टीरिया कॉजिंग द डिसीज। तो दूसरे साइंटिस्ट ने भी ऐसे उसी रूप से टाइफॉइड का साल्मोनेला टाइफोजा आइडेंटिफाई किया, साल्मोनेला टाइफी, टेटनस के लिए क्लोस्ट्रीडियम टिटानी और प्लेग के लिए एर्सिनिया पास्टिस। ये सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई हुए। कोच प्रोवाइड द फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। तो उसने माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी यानी किसी भी सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में देख के उसमें पैथोजन दिख रहे कि नहीं दिख रहे, वो आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट किया। हेलो, हाँ सर, તમે